Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Today, I am thrilled to discuss the upcoming Youth Leadership Program from the Advision Global Academy along with the Nurul Huda Education. It promises to be an enriching experience for all the participants aiming to build the leaders of tomorrow. So, without any delay, I would like to introduce Ms. Rafia Mudassir, the Dean of Advision Global Academy and the Director of Nurul Huda Education. And today we will discuss the upcoming Youth Leadership Program Vision 2030, which is especially designed for youth leadership and building and nurture the values in the youth and the upcoming generations. So I would like to introduce Ms. Rafia Mudassir, as you very well know that she is an educationist and a counselor and a welfare worker with an overall teaching experience of around 30 years. She started her career by choice as a teacher from her alma mater, Habib Girls Higher Secondary School, and currently she is serving the nation and society as an educational leader. At Nurul Huda Education Foundation, of which she is a founder and CEO, and recently she launches Advision Global Academy. She defined her work and inspiration through these quotes. Life is no brief candle to me. It is a sort of a splendid torch that I have got hold of for a moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it to the future generation. And definitely, this quote is from George Bernard Shaw, and actually, it reflects the personality of Ms. Rafia Mudassir. I would like to invite and with a warm welcome to Ms. Rafia Mudassir. Welcome, Ms. Rafia. Thank you so much, Lubna, for this generous introduction, and Assalamu alaikum, and welcome on whoever will be watching this orientation. And you can put your questions as you watch the video to be answered Yes. Later on. And definitely, we will give answers in the chat as well afterwards. First of all, I would like to ask the basic question about this program overview of Youth Leadership Program, that is Vision 2030. And can you provide a brief overview of the upcoming Youth Leadership Program? The background is, as you just quoted, George Bernard Shaw. So this has been a guiding light since I was 10 or 12 years old, where I actually started understanding that you have to have a purpose in life, and you have to learn to live that purpose and to reach that purpose or goal. So I often look back. It was something that was always there in front of me in a frame, which now I recently shifted and I have kept it somewhere and I've not found it. So it was good to listen to it from you, though I had not sent this to Lubna. Lubna's researched herself and found out, I think, from my LinkedIn profile, because that is where it was. I had posted that this is the vision, mission that I have in my life. So the youth leadership program basically started from my own self, where I got opportunities to practice and enhance my leadership, from being a prefect in the school and then being elected as the president of the students council in my college, being captain of various sports teams. So I think was lucky enough to get these opportunities, which many of our youth boys and girls don't usually get. And if they get, then maybe they do not find very good teachers or mentors. So I've been a lucky student, both in my as a child and then as a professional, that I always had very good teachers, mentors, trainers, that I was able to enhance and better my skills with each step of my life. As I progressed, I always had a mentor, I always had a leader. So from there, the idea, when I became a teacher, again, I've been associated with middle school, where the students are actually reaching their puberty age, pre-adolescent, adolescents, and then OA level students. So dealing with them, and even then at university level, where I was teaching a semester, I realized that there are very, very big gaps in the guidance that is provided to students at school or college level. और उसमें फिर ये होता है
कि बच्चे जो हैं अगर उन्हें नहीं गाइडेंस मिलती, जब उन्हें जरूरत होती है तो वो मायूस हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर वो सीखना भी छोड़ देते हैं। सो उस वक्त ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम एंड लीडरशिप डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर स्किल्स एंड गिविंग अपॉर्चुनिटीज एज अ हेड एज अ टीचर वाज ऑलवेज माय प्राइम goal. Because apart from teaching the subject that you are teaching, teachers should be able to identify the strengths of students and provide them ample opportunities. Like हम क्या करते हैं as teachers, जो अच्छा बच्चा होता है ना वही डिबेट में जा रहा होता है, वही बच्चा स्पीच में जा रहा होता है, वही बच्चा गा भी रहा होता है, वही बच्चा नाद भी पढ़ रहा होता है. So we pride ourselves in the achievements of the best students in our schools, in our classrooms. और हम वो बच्चे जिनकी छुपी सलाहियतें होती हैं उनको हम कोशिश नहीं करते आगे लाने की. So I was always, I don't know, attached with the students who were my backbenchers, students who were quiet students, students who were stressed out, students who had any learning difficulties. So मैं हमेशा as a teacher उन बच्चों के साथ ज्यादा associate मैंने किया है by nature, by my own personality maybe. So I always thought that if I am able to make a difference in the life of these children, तो तभी मैं as a teacher कोई कमाल कर सकूंगी. Otherwise जो अच्छे बच्चे हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, कर ही लेंगे, अपनी मेहनत से कर लेंगे, उनके पेरेंट्स उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं, क्योंकि जो ब्राइट बच्चा होता है पेरेंट्स भी उन पे ज्यादा अटेंशन देते हैं. और जो बच्चा इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होता, पेरेंट्स उसकी वजह से परेशान भी रहते हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आता. So there was always a guidance and counseling, properly structured learning support program, then a guidance and counseling program, and then arranging extracurricular activities, having clubs. I was fortunate that we had a Sri Lankan educationist who actually launched this extracurricular program जहाँ बच्चे अपने clubs बना सकते थे. And so those opportunities where I saw there were students who came कि मिस हमने photography club बनाना है, there were students who came who said मिस हमने जो है ना swimming club बनाना है. तो फिर हम उनके लिए देखते थे कि कहाँ इनको भेजेंगे, कौन टीचर है जिसमें ये खूबी ये सलाहियत मौजूद है और वो इनको ट्रेन कर सकता है. तो इस तरह से आई थिंक बहुत सारे किए. और ज़ाहिर है मेरा अपना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस था बीइंग मेंबर ऑफ अ काउंसिल माई सेल्फ, तो वो चीजें हमने वहां से सीखी हुई थी उन असातिज़ा से जो हाईली ट्रेंड और ग्रूम्ड लोग थे. अब तो वो वाले ठहराओ मेच्योरिटी वाले टीचर्स भी आपको नहीं मिलते अपने स्कूलों में. सो वो हमारे जो असातिज़ा थे वो तो आपको चलने पे रोक लिया करते थे कि ये कैसे चल रहे हो, डेफिनेटली, बिल्कुल या ये बिल्कुल. कैसे बैठे हो, या आपने सलाम नहीं किया. सो ये सारा तरबियत का हिस्सा है हमारी. और चाहे वो हबीब स्कूल की हो मेरी स्कूलिंग, हमारी जो पी टीचर थी शी वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन. हमें उस वक्त उन्हें गुस्सा आता था, लेकिन बाद में भी रियलाइज के those disciplinary actions basically became part of our personality and grooming, and that actually has helped us being good parents and being able to guide our own children. And then I have not limited this to my own children. जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी तो वो बच्चों के अलग ही मसाइल थे. कोई लियारी से आ रहा था, कोई लैफ्टाबाद से आ रहा था, कोई न्यू कराची से आ रहा था. So they were children coming from all across the city and they were coming from good institutions also. लेकिन उन्हें जो है जो गाइडेंस चाहिए थी वो नहीं थी. So then that was the time that I designed this leadership program and incorporated. और फिर मैं इसको ले गई वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के पास, उन्होंने इजाजत दी, बट पैंडेमिक आ गया. Yes. उस पैंडेमिक में बिफोर लॉन्चिंग इट एट कराची यूनिवर्सिटी वी डिड वन एट डीएचए स्कूल. और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे से मेरी बातचीत थी, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया. उनके अपने बच्चों ने, उनके अपने नेफ्यूज ने, प्लस उनके स्कूल के बच्चों ने अटेंड किया. अ ग्रुप ऑफ लियारी गर्ल्स हु वर वर्किंग इन लियारी projects, they joined, my own team joined. So we had a good group of 17 18 students. Then for one session even the parents joined. So वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा गया. And what the feedback that I got from the principal of DHA at that time was कि वो स्कूल ऑफ लीडरशिप वाले हमें पूछ रहे हैं कि ये कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, जो कि 5,000 रुपए में हो रहा है. So my idea was not just to give a good program. The idea was कि जो महंगे महंगे लीडरशिप कैंप्स और वो होते हैं जो कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उस तरह की ट्रेनिंग अपने बच्चों को पब्लिकली दें, जो कि एक जिसमें ये कि हमारे एक्सपेंसेस हम मीट कर सकें एंड वी गिव देम अ क्वालिटी प्रोग्राम.
Yes. So that was in 2020, the first program. The second program was in pandemic, which was done online. And again, it went very well. We did it in collaboration with Adletica, जो कि एक प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन. और उसमें मुझे याद है कि एक बच्चा केपीके का भी अटेंड करता था. वो कहता था, मैडम मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के आता हूँ यहाँ पर जहाँ सिग्नल है पहाड़ों से दूर. तो इस तरह के बच्चे उसको अटेंड कर रहे थे क्योंकि दैट वाज ऑनलाइन. सो अगेन इट वाज फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. सो वो Okay. बच्चे मैं देख रही हूँ. एंड टू एग्जांपल्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सलीमुल्लाह Yes. एंड असदुल्लाह. Yes. असद ने तो अपना ही वो एक बना लिया है, को जिसको वो कहते हैं ना, जिसमें ये बच्चे अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो वर्किंग स्पेसेस, को वर्किंग स्पेस, एंड इन Yes. हिज एरिया, एंड हिज एरिया इज नियर बनारस, Mm-hmm. वेरी फार ऑफ. सलीम अपनी कम्युनिटी में भी काम कर रहे हैं. ही कम्स फ्रॉम पठान बैकग्राउंड जहाँ पे बच्चियां नहीं पढ़ाती. तो बच्चियों को एनकरेज करना, उनको स्कूलों में भिजवाना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दीज टू बॉयज स्पेशली. उसके अलावा जाहिर है दूसरे लोग डिफरेंट और बैकग्राउंड से आए थे. सो देयर वाज अ गर्ल हु बिकेम अ ज्वेलर. उसने अपना ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया एंड शी इज डूइंग माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी वेल इन द सेम वे. और दूसरे बच्चे भी डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने प्रोजेक्ट्स अपने शुरू किए या वेलफेयर का, कम्युनिटी सर्विस का काम किया. तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेयर वी एक्चुअली आर ग्रूमिंग चिल्ड्रन टू रियलाइज दैट दे हैव a part to play in the community as well. It's not just कि आपने अपनी फैमिली लाइफ करनी है या अपने प्रोफेशनल लाइफ पे काम करना है. और मैं खुद भी ये बात बार बार रिपीट करती हूँ अपने तमाम ट्रेनिंग सेशंस में कि वी जस्ट, there are two purposes that I learned at the age of 39 when I left my first job. Is the first one is कि Allah Taala की तारीफ हमदो सना बयान करना, because that's what why we have been created. And the second one Yes. is to love his beings. जो अल्लाह की मखलूक है, चाहे वो इंसान है, अब तो जानवर, पौधे, परिंदे, उस पर भी आई रियलाइज कि जो चीजें प्रॉब्लम्स हमने इंसानों ने क्रिएट कर दी हैं. So we have to plant trees, we have to take care of our environment, we have to take care of the earth, we have to take care of the animals also. क्योंकि वो सब हमारे नेचुरल हैबिटेट का हिस्सा हैं. अगर हम ही उसको नहीं महफूज बनाएंगे तो हम ही उसके सफर, हम तो चले जाएंगे, हमारे बच्चे सफर करेंगे. सो द यूथ एक्चुअली अगर इसको हम एक लाइन में बताएंगे, द ऑब्जेक्टिव, द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाईएलपी प्रोग्राम इज टू लिव अ वैल्यूएबल लाइफ. वो हमारे बच्चों को हमारी पर्पसफुल लाइफ और जिस मकसद के लिए इस दुनिया में हमें भेजा गया है और जिस तरह से हम अपनी यूथ को देखना चाहते हैं, उसी तरह से उनको ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि लाइफ स्किल्स के हवाले से भी और एक्स्ट्रा करिकुलर अपनी जो एक लाइफ उनकी होगी विद इन द एकेडमिक लाइफ, उसके अलावा भी जब वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो अगर उनके साथ उस तरह से हम लेकर उनको चलें तो हाउ दे विल लीड देयर फैमिलीज, हाउ दे विल लीड देयर वैल्यूएबल लाइफ. तो अगर एक मेन कोर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो वाईएलपी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो है या कोर लाइन जिसको हम कहेंगे वो यही है कि जो जिंदगी का मकसद है वो उससे बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम इस दुनिया में सिर्फ एकेडमिकली एक्सेल करने नहीं आए या जहां पर हम किसी भी एकेडमिक हम इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं सिर्फ वही जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी ये है कि जिंदगी को जीना कैसे है. एंड दैट इज एक्चुअली द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाईएलपी विजन. सो वाईएलपी भी वैसे भी लुबना अगर आप देखें तो हम बहैसियत इंसान, अगर आप पाकिस्तानी को देखें, जितने लोग जितने प्रोफेशंस में, दे आर नॉट हैप्पी. दे से कि बस अम्मा ने कहा तो मैं डॉक्टर बन गया, अब्बू ने कहा तो मैं इंजीनियर बन गया. तो ये भी एक चीज है जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज people should be happy. They should, whatever they are doing, they should be happy. So finding your purpose as a human being, like I found my purpose. जब मैं छोटी थी तो मैं समझती थी कि मैं अपने मुल्क की खिदमत जो है एयरफोर्स पायलट बन के कर सकती हूँ, जो कि उस जमाने में नहीं बनते थे. तो फिर उसके बाद इंटर के बाद जब एक गैप ईयर आया और मैं अपने स्कूल वापस गई तो वहां से मुझे पता चला कि भाई मैं एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ. एंड दैट इज वेयर देन आई सिलेक्टेड माय सब्जेक्ट्स एज अ टीचर. जैसे आपने कहा भी, आई एम अ टीचर बाय चॉइस. सो फाइंडिंग योर पर्पस, रियल पर्पस इन लाइफ, वो चीजें जो आपको खुशी दें, वो चीजें, वो काम करके जो आपको
inner satisfaction, inner peace मिले, that is very very important to lead a good life and to find your purpose. And जब आप जाने वाले हो इस दुनिया से तो आपको कोई regret ना हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी जाया कर दी। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने आगे आने वाली नस्ल को जो है वो अपने लिए कैसे सदका जारिया बनाएंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उनको सिर्फ एक दीनी तालीम ही दें, बल्कि अच्छी चीज ये है कि एक हम उस तरह जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा दें, या उनको इतनी सेल्फ कंटेंटेडनेस उनके अंदर होनी चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपने पैशन के साथ करें, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन उनकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर मैं इस हवाले से पूछूं कि ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है या इसका एक कंटेंट जो है जिस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, और आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें हम इसको किस तरह से एक यूथ को इस तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनको एक सपोर्ट प्रोग्राम अगर हम उनको देंगे, तो उस पे आपका एक क्या मिशन है आपका, या आप उसको किस तरह से देखती हैं कि इसको किस तरह स्ट्रक्चर करना है? एज ए टीचर तो मैंने इसके पहले 4 मॉड्यूल्स बनाए थे जो कि अगेन 5 साल पहले 2020 में they were very valid and I thought कि मैंने बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोग्राम बनाया है, but as you learn you realize कि इसको मजीद चेंज करने की जरूरत है। So the first was self leadership, how to be a leader in my own right, मेरे क्या strengths हैं, मेरी क्या leadership quality है जिसको मुझे enhance करना है to overcome my weaknesses. So that is the main objective of the first module, और उसमें self leadership है, developing your own leadership skills and being a leader in any situation. So this is what they are going to learn. The second one was personal effectiveness, और उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, managing resources, managing relationships, managing your emotions, managing your workplace. So that is how you become personally effective. Then the third one was 21st century learning. अब 21st century learning तो हम 2000 से पीट रहे हैं, मैं तो टीचर्स के लिए भी और उसके लिए। अब now the AI age is upon us, so we have to now maybe perhaps incorporate that how to learn in an environment which is loaded with information, and how to find the truth, because आप देखें कि AI is being used to change minds or impact youth, especially regarding religion, regarding politics, regarding any other aspects of their life. So हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा influenced हैं, so helping them know how to find the truth and authentic information and utilizing it for their benefit, that is very very important. So apart from the 21st century, the 6 C's and problem solving, the main issue is to address how to use AI in this age to maximize their learning and to keep safe from propaganda and being part of negative campaigns which impact, वो असर करती है ज़ाहिर है उनके फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ को भी असर अंदाज होती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल पढ़ी थी, एक हार्वर्ड के बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन कमेंट ही और शी हैड मेड on social media. So how to use social media to their advantage and not be misled by false information. Then the ability, those who want to job, क्योंकि हम सबके अलग अलग aspirations होते हैं. Some of us wants to be in government jobs, some of us are looking jobs in multinationals, and some of us think कि हमारा nature ही नहीं है किसी के under काम करने का, and we should be business persons or entrepreneurs. So employability and entrepreneurship is the last module, and of course we have incorporated the value-based leadership in it, so that the children are looking at or assessing themselves against the values that they should be having as young professionals, because 13 to 24 year olds के लिए तो 24 साल का बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप करता है। ओके अच्छा, अगर मैं ये स्पेशली ये बात पूछूं कि इस यूथ लीडरशिप प्रोग्राम को हम क्या देखते हैं कि किस एज ब्रैकेट के बच्चे जो यूथ में हमारे आते हैं उनको इससे ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी पार्टिसिपेंट्स की आप एक एज ब्रैकेट अगर एक स्पेसिफिकली हम इसको देखें, जैसे आपने बात की कि हम इसमें सबसे पहले वैल्यूज की बात करेंगे कि वैल्यूज जो हैं वो क्या इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, उनकी पर्सनालिटी के अंदर क्या उसकी इनकलकेशन होनी चाहिए, तो किस एज ब्रैकेट को आप समझती हैं कि ये स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इनमें वैल्यूज को इनकलकेट करें? देखिए, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप का प्रोग्राम तो 9 साल के बच्चों से स्टार्ट है।
So we will be having for the younger ones 9 to 12-year-old का अलग ग्रुप होना चाहिए, because बाकी बच्चे फिर वो mature होते हैं, तो 13 to 16 years or 17 years एक ग्रुप होगा, and then 18 onwards where they have now their identity card CNIC and they Yes. are feeling more confident of themselves कि अब वो जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो वोट भी दे सकते हैं. So then those children who are in joining university at the age of 18 and then passing out at 23 or 24 years old, तो ये different groups हैं. और मैं ये समझती हूँ कि 9 साल वो एज होती है जहां बच्चे अपनी वैल्यूज या अपने पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पुख्ता करना शुरू हो जाते हैं. दे आर टेस्टिंग देमसेल्व्स, हु एम आई, मेरी क्या स्ट्रेंथ है. वो हम एडल्ट्स को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, टीचर्स से, और उसको जज करना शुरू कर देते हैं. तो वो एज होती है जो ये बिल्कुल सही एज है जहां से आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप स्पेशली. क्योंकि आप देखें हमारे मजहब में भी है कि बच्चा जब 7 साल का हो तो आप नमाज के लिए सख्ती करना शुरू कर दें. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो जब रिलीजियस वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज सारा बच्चा जब सीख रहा होता है, तो 9 साल वो उम्र होती है जहां वो एक्चुअली इन चीजों को फाइनलाइज कर देता है कि मैं ये हूँ, मुझे मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी पर्सनालिटी ये है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है. So this is the time where we need to make them assess their values. Do they have the right values to actually move into the next stage of life, which is the adolescent age? एग्जैक्टली अच्छा, इसमें जैसे हम अभी आपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात की, तो जैसे हम देखते हैं कि एक पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है या कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, उसके जो स्लॉट्स हैं एज पर द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, उसमें यह है कि 0 to 7 years एक स्टेज होती है, फिर 7 to 14 एंड 14 to 21. तो यू मीन टू से दैट कि ये यूथ लीडरशिप प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली ये 7 या 9 years से हम देखते हैं कि इसकी बिगिनिंग हो जाती है, और हम उसमें वैल्यूज को, जो हमारे फैमिली डायनेमिक्स हैं या हमारे फैमिली से जो चीजें आती हैं बच्चों के अंदर, कुछ हमारे नॉर्म्स होते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग के जो एक उसूल होते हैं, वो इनकॉर्पोरेट करने का एक सबसे बेस्ट एज ब्रैकेट जो है वो 7 to 9 years के बीच में है. देन उसके बाद उसको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम टिल 21 years. सो अगर इसमें हम ये देखें कि जैसे आज अभी आपने बात की कि इस वक्त जो हमारे पास एरा है वो एआई का एक है दौर है, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हर चीज में मौजूद है. डू यू रियली थिंक सो कि देखें, मैंने ये चीज देखी है अपने पूरे करियर में, विद इन 25 years in the teaching experience and having a training experience as well as the mentoring of the youth and the parents, कि यूथ के अंदर और बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि हमें इस तरह के प्रोग्राम्स में एक तरह से नेटवर्किंग का भी हमें बहुत ज्यादा एक उनकी नजदीक ये है कि हमें पर्क्स क्या मिलेंगे. तो आपको क्या लगता है कि YLP को जो हमने डिजाइन किया है, इसमें स्टूडेंट्स को किस तरह के लोगों से नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा या उनको एक एक्सपोजर मिलेगा जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा इन देयर यूनिवर्सिटी और द प्रोफेशनल लाइफ? There will be networking with the, पहले सबसे तो जो आपके टॉप एजुकेशनल लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स who actually are conducting leadership trainings, so we have them on board. Plus ये है कि ज़ाहिर है they will be doing some community service where they will be visiting. मेरा अपना इरादा तो लुबना था जब हमने ये फर्स्ट प्लान किया था ना, to have it actually a live-in camp where the children actually learn how the basic life skills, कि भाई सौदा कैसे खरीदते हैं जाके, कि they are given a budget for financial literacy, they go and buy the breakfast items and come and cook it themselves. but ये कि वो security issues उस जमाने में काफी थे, फिर कोविड आ गया, तो अभी भी ये है कि some part I would like के 1 या 2 दिन, क्योंकि वही security concerns होते हैं, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा extra resources deploy करना पड़ते हैं when it is a matter of a youth camp, और फिर बॉयज और गर्ल्स का अलग भी करना पड़ता है वेयर यू दे आर स्टेइंग. सो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना पड़ता है. तो इवन आई हैड प्लान्ड गर्ल्स ट्रिप टू द नॉर्दर्न एरियाज, बिकॉज हमारी लड़कियों को ये वाली अपॉर्चुनिटीज ट्रैवल की बहुत कम मिलती हैं. अब कुछ फीमेल टूर ऑपरेटर्स ने ये चीजें शुरू की हैं, बट देन दे आर नॉट एजुकेशनिस्ट, दे आर नॉट ट्रेनर्स, तो वो तो लेके जाते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म, और कर लेते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज उनके साथ कि भाई वो दे गेट अ फील के दे आर ऑन ट्रेनिंग, बट एक्चुअली
to have a purposeful training. The thing is कि उसका एक पूरा structure outline होना चाहिए, outcomes क्या होंगे और students के लिए क्या outcomes होंगे, जो हम organize कर रहे हैं हमारे लिए क्या outcomes हैं. So if time permits, if the situation in the country permits, I would really very much want to have live-in camp where children actually get a chance to live with each other and learn many other skills that are not possible in a 9 to 2 p.m. or 9 to 3 p.m. class. अच्छा, इसमें एक स्पेशली एक चीज को जरूर हाईलाइट करूंगी कि जो मैं समझती हूँ कि एक यूथ को इस चीज की भी गाइडेंस देना जरूरी है कि आपको किस तरह के मेंटोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए. एक इन्फ्लुएंशियल जो एटीट्यूड हमें नजर आता है कि वो जो एक फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूथ जो है वो इन्फ्लुएंस होती है किसी भी पर्सनैलिटी हाँ, से, they लेकिन look आप for उनको ideals. हाँ, उनको आप लॉन्गर रन में अपनी लाइफ का मेंटोर नहीं कह सकते उन लोगों को. तो एक यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में इस चीज को बड़ी सेंसिटिवली जो है वो डिजाइन किया गया है कि हम ऐसे मेंटोर्स के साथ नेटवर्किंग जरूर करवाएंगे अपनी यूथ को कि जो लाइफ टाइम उनको एक ऐसी चीजें सिखा सकें या लाइफ टाइम उनकी मेंटोरशिप जो है वो रहे, चाहे फिर वो मेंटोर्स हैं या नहीं है, लेकिन उनकी जो मेंटीज हैं वो सारे यूथ जो है वो अपनी लाइफ को इतना वैल्यूएबल बनाएं कि वो रिफ्लेक्शन हो अपने मेंटोर्स का. तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव एक इशू है कि हमारी यूथ के अंदर ये एटीट्यूड को डेवलप करना, वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना कि आपको अपने लिए गाइड या मेंटोर्स जो हैं वो सेलेक्ट किस तरह से करने हैं और किस तरह के लोगों से आप जो है वो अपनी गाइडेंस लें एट योर स्टेज ऑफ 14 to 21 स्पेशली. सो आई थिंक कि ये वाला जो एक नेटवर्किंग का एक पर्सपेक्टिव है, इसको भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है आज की यूथ के साथ. और स्पेशली मैं समझती हूँ कि जो 14 to 21 ईयर्स के जो यूथ है हमारे पास या नेक्स्ट जनरेशन जो अपकमिंग इंशाल्लाह हमारे लीडर्स होंगे, ये जिससे इन्फ्लुएंस होंगे वही चीज उनकी अपनी जिंदगी में आगे भी रिफ्लेक्ट करेगी और ये उसी तरह से लीडर्स होंगे या उसी तरह के ये आगे प्रोफेशनल्स होंगे जिस तरह के प्रोफेशनल्स को या लोगों से ये इन्फ्लुएंस हुआ करेंगे. अच्छा, एक मुझे चीज ये बताइए मिस्टर रफिया कि हाउ विल यू मेजर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने सलीम की एग्जाम्पल दी, आई थिंक कि उनका कॉन्फिडेंस जिस तरह का है, जिस तरह का एक उनका स्किल्स जिस तरह से एक बहुत ग्लो करती हैं या सिग्निफिकेंटली जो है वो हमें फर्स्ट बैच के जो वाईएलपी के जो उस वक्त आपके सारे ट्रेनीज थे वो माशाल्लाह आज अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं. तो आप अब ये किस तरह देखती हैं कि अब जिस तरह से हम जाहिर है विद इन 5 years बहुत ज्यादा एक चेंजेस आती हैं, एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है, यूथ का एक फोकस का जो स्पैन है उसमें भी बहुत वैरायटी मौजूद है. तो हाउ विल यू मेजर दिस थिंग कि हमें ये सक्सेसफुल जो है वो किस तरह होते हुए नजर आता है. There is a last part which where they submit an action plan. वो उसमें लिखते हैं एक personal development and professional development. So that we keep on mentoring till 3 months. कि वो फिर फील्ड में उसके बाद जाएं और करें. एंड डेफिनेटली जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए अभी भी, जिसमें यसरा इज वन एग्जांपल. यसरा जो है वो कम्युनिटी सर्विस इतना कर रही हैं एंड माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज गोइंग टू यूके नाउ. शी हैज गॉटन अ जॉब इन वन ऑफ द एनजीओज इन यूके. So she's moving with her family. I think कि ये जो है एक बहुत अच्छा उनके लिए स्टेप भी है. and this shows her progress over the years. Like she also joined me during this time only when 2020 की बात है जब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था. Then we had Tushna. Tushna is settled in Dubai. पहले भी वो लाहौर में सेटल थी, फैमिली से अलग होके वो अकेली रह रही थी and she was working in a multinational. And she improved her skill in business and marketing and all this. And again, now she's working in Dubai. तो ये जो मेन बच्चे हैं जिनका मुझे जो who are in touch and whom I know कि ये क्या कर रहे हैं आगे. तो बात ये है कि उन्होंने अपने लिए क्या गोल सेट किया था and whether or not they were able to actually achieve that action plan with the help of the mentors and with the help of the camp input. क्योंकि जाहिर है जब वो लोगों से मिलेंगे तो वो फिर उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप का हिस्सा होते हैं, मेंटोर्स भी और मेंटीज भी, ट्रेनर्स भी और ट्रेनीज भी. तो स्टूडेंट्स कनेक्ट सो दे एक्चुअली कैन गो अप टू, दे कैन आउटडू आवर एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. तो वो जरूरी नहीं है कि मैंने ये सोचा कि ये इसका सक्सेस होगा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर डायनेमिक and we keep on changing and we learn
हमारी लर्निंग भी उतनी ही डायनामिक होती है. हमें नहीं पता होता, मुझे नहीं पता था कि आज मैं बैठी एआई का कोर्स कर रही होंगी, just to remain on top of whatever I'm doing, because I know I have to learn it. अगर मैं नहीं रहूंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी कहीं, and I will be out of the game. So I have to keep on top of things, and I have to keep on learning and improving my own skills. So I think that itself is a motivation for people who are connected to me. And that is what life is. It's a lifelong learning process. इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे साथ यूथ कनेक्टेड होगी थ्रू द कम्युनिटी, जाहिर है इसके लिए कि हमने कम्युनिटी के लिंक्स भी जनरेट किए हैं, जो कि थ्रू एडवर्टीजमेंट जो है वो काफी जगह उसको हमने स्प्रेड आउट भी किया है. तो अगर कम्युनिटी में भी जो स्टूडेंट्स या जो यूथ मौजूद होती है उनको हम ऑनवर्ड्स भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर जॉब्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एनी टाइप ऑफ सपोर्ट इफ दे नीड इन फर्दर देयर लाइफ. तो इट मीन्स कि ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है साथ साथ. जब भी उनको जरूरत हो तो उनके मेंटोर्स यहाँ पर मौजूद हैं and they will be connected with them through lifetime. And sometimes they come back with personal problems also. मतलब मैं इस चीज पे भी at times हैरान होती हूँ. Like one of my students called me from Canada. So his first marriage had failed and he said कि मैम I am not understanding कि मुझ में क्या कमी है और जो ये हुआ and how to overcome it. So at times और mentor का वैसे एक बहुत बड़ा umbrella होता है. It's not just the professional and the course support that you're providing. A mentor is a person who actually identifies flaws in your personality also and helps you overcome them. क्योंकि वो आपको as a whole person देख रहा होता है, not just potential mentee or trainee. So we have to look into so many different aspects, and so they keep coming back and they keep learning. And so ये I think एक motivation है for everyone. So मेरे ख्याल में तो हर टीचर हर मेंटोर को ऐसा होना चाहिए जब आप खुद नजर आ रहे होते हैं कि यू आर लर्निंग ऑल द टाइम, तो ऑटोमेटिकली ये चीज जो है बच्चों को जो है वो ट्रांसफर होती है जो भी आपके होते हैं. तो लीडरशिप कैंप का पर्पस यही है कि दे आर एबल टू फाइंड द पर्पस, दे आर एबल टू फाइंड एंड दे आर एबल टू लर्न हाउ टू लर्न. मतलब और तो उसमें ज्यादातर बच्चे तो इस पे चल जाते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम में स्पेशली ये चीज है कि हमने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं करते. शादी भी कर देते हैं पेरेंट्स, तब भी उन्हें होता है कि उनसे पूछ के वो रात के खाने पे जाए, उनसे पूछ के वो बेगम को बाहर लेकर जाए. तो ये जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है ना, दैट ऑल्सो लिमिट्स चिल्ड्रन. एंड आई थिंक दैट वंस दे लर्न हाउ टू मेक राइट डिसीजंस, दे लर्न हाउ टू लर्न themselves. So फिर they move on, वो अपने उस स्टेज से निकल जाते हैं. They become leaders in their own right and they are confident of themselves and they are able to take the right decisions. कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बाद में भी सपोर्ट चाहिए होती है and they keep coming back. And they keep coming back for advice also कि मैम ये कोर्स हो रहा है मैं कर लूँ, will it benefit me, इसकी credibility क्या है. जहाँ उन्हें डाउट होता है तभी वो आते हैं. So I think चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हों क्लास के, the very first batch of 1994 that I taught, students who are now lawyers, bankers, doctors, surgeons all across the globe, या वो टीचर्स हों जो मेरे साथ जुड़े जब मैंने अपना एज अ ट्रेनर सफर शुरू किया. तो आई थिंक दे ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी बिकॉज आई थिंक ये प्रोग्राम की कामयाबी का ही जो है एक क्राइटेरिया है that people trust you and they keep coming back to get the advice that they need. So I think there is no restriction of age that after 24 years they may not come or they may not join or they may not come. फिर वो adults का professional वो teachers का program हो जाता है. फिर मैंने professionals का भी किया, like women empowerment पे मैं कर रही हूँ. So they are not teachers, they are other people also. तो लीडर्स अपना लीडरशिप स्किल एनहांस करना चाहते हैं, सो वो भी यहाँ पे बता देते हैं. इट्स कनेक्टेड टू YLP क्योंकि उसमें भी यूथ आती है, लड़कियां आती हैं, खवातीन भी आती हैं, वो बड़ी एज की भी होती हैं जिनको जो है अब दे हैव टू स्टेप इनटू प्रोफेशनल लाइफ ड्यू टू हस्बैंड्स डेथ और रिटायरमेंट और अदर थिंग्स. तो दे कम, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइव्स. तो वो हमारा ये जैसे उड़ान के नाम से प्रोग्राम है specifically for youth up till the age of 24. Then we have Mashal, especially for women.
एंड ऑफ कोर्स जो हमारा चल रहा है, अब उसको ग्लोबल एकेडमी इसीलिए कर दिया है कि ये सारे प्रोग्राम उसके अंडर आते हैं एंड वी हैव इंटरनेशनल पीपल ऑन बोर्ड एज वेल. It's not now just limited to Pakistan. We have trainers and we have influencers and we have people we have connected with abroad also. Canada, America, मतलब ये कि it's all the continents I will say, and I'm very proud of this fact कि मैंने खुद हर जगह से सीखा है और मैं फिर जो मेरे रिसोर्सेज हैं आई कनेक्ट विद ऑल द पीपल हु कम ऑन बोर्ड इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ओके अच्छा, इसमें बस इसमें मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे अब आपका नेक्स्ट जो अपकमिंग है वो है यूथ लीडरशिप प्रोग्राम्स के हवाले से जो उनकी वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज की जो हम बात करते हैं उसको लॉन्च करने का. अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा एक ब्रीफली इसको डिस्कस करें कि फॉर एग्जांपल अभी हम जो है अब इसको नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में जब लेकर आएंगे, सो विच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट. अगर जैसे अभी हमने जो बात की थी कि इन अ वेरी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी आई हैव बीन इनवाइटेड एज अ पार्टिसिपेंट और एज अ गेस्ट, सो अगर हम वहाँ लॉन्च करते हैं तो इसमें हम विनर्स को या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं तो हाउ दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. इससे पहले हम वैल्यू बेस्ड लीडरशिप का जो मेन प्रोग्राम था वो रन कर रहे थे. नाउ दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर नेक्स्ट जेन, इसका नाम ही नेक्स्ट जेन है, नेक्स्ट जेन लीडरशिप वैल्यू. सो वी विल पिक द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट मॉड्यूल एंड व्हिच विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट so that they can come back, and of course they will be expected to share their learning and tell us what difference it has made, so that we can then start enrolling other students who need it more than them. So the first would be you could say the test run of the program, or the very first batch will be the best of students and the winners of competitions. एंड अगेन अभी जो हम छोटे सेशंस करेंगे उसमें पार्टिसिपेशन भी देखेंगे ना, कितने सारे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर वीकेंड पे एक रख रहे हैं, अ शॉर्ट वीडियो. सो वी विल सी हु इज विलिंग टू पार्टिसिपेट. सो जो सीखना चाहता है ज़ाहिर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला तो हम उसी को ऑफर करेंगे. एग्जैक्टली और इस तरह से एक YLP का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जैसे यूथ को बहुत ज्यादा एक जरूरत होती है किसी भी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म की, किसी भी क्रेडिबल रिकग्निशन की, सो दे कैन गेट इट फ्रॉम YLP विजन 2030 और नूरुल हुदा एजुकेशन और एडविजन ग्लोबल एकेडमी के अगर so we have now Global Priority Solutions USA, which is a team trained by John Maxwell, who is one of the leadership gurus globally. And then the other thing is that our Advision Global is being registered with CIPD UK. So they will be having an international certification for all the sessions, not just the training programs, the sessions that we run, need-based sessions. कि communication पे हमें लगता है कि ज़्यादा करने की ज़रूरत है. So we may just have one program on communication skills, क्योंकि communication मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है. Because हमारी youth जो है, they do not know how to put forward their thoughts and opinions in an effective manner. And now the way you apply to universities, you apply to jobs internationally has changed. And the students should learn how to be effective, how to do effective communication. Yes, और जितना हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जहां बात आती है इंटरव्यूज की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, इस तरह की चीजों की, तो वहां वो लैक करते हैं. और आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा उनके लिए जो है वो डिजास्टर हो जाता है कि हम एकेडमिकली हमेशा टॉप नॉच स्टूडेंट्स में थे या टॉप पोजीशंस पर थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लाइफ स्किल्स, लैकिंग ऑफ दीज लाइफ स्किल्स जो हैं, वो अपनी एक कामयाबी की तरफ जो एक रास्ता जा रहा है उसमें काफी हर्डल्स फेस करते हैं. इसमें डे टू डे कम्युनिकेशन भी है लुबना. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में डेथ हो गई है, हाउ टू condole a person, how to offer condolence, how to actually sit with that person and show your support. हमारे बच्चों को आता ही नहीं है. Exactly, यही है. Exactly, you are right. They don't know. और फिर अपने emotions, like you are feeling angry, so you should be able to tell why you are angry and how will you feel pacified or peaceful. So they are not able to share their emotions and feelings about aspects like अभी जैसे ये border पे problem थी, the children were scared, so they should be able to say it out, speak it out, what is there, what is the fear they have in their heart, so that
it can be addressed. So they were not able Yes. to, बस टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे. हाँ एग्जैक्टली और उनको एक बैलेंसिंग ऑफ इमोशंस का जो हमें कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक कि अगर एक यूथ जो हमारी अगर यूथ के पास बैलेंसिंग ऑफ इमोशंस है एक्सप्रेसिंग ऑफ इमोशंस है अगर ये वाले स्किल्स इनके पास हैं तो आई थिंक they will get success in their life as well, not only in academics. So ये जो है, it is the key, communicating your feelings, opinions, your thought process, and in a specific manner, summarizing your thoughts, putting them on in writing or verbally expressing Yes. are key skills that will actually help them achieve success in future life. Because उसके बगैर अब even AI को इस्तेमाल करने के लिए आपको prompt डालना आना चाहिए. अब prompt हाँ ही नहीं पता, language ही नहीं आती, तो बिल्कुल कैसे करेंगे? Exactly. Okay, last but not the least, I would like to wind up this launching podcast. आखिर में बस ये चाहूंगी कि एक क्या आप पैगाम देंगी अपनी यूथ को सब हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे घरों में भी यूथ यकीनन मौजूद है बहुत सारे लोगों के और डेफिनेटली के जो हमारे पास जेन जी है या जेन अल्फा है वो भी जब यूथ की तरफ आएंगे उस स्टेज की तरफ आएंगे तो उनके लिए कोई मैसेज क्या देना चाहेंगी? Be yourself and look within. All the answers are inside of you only. Yes. Who am I? What can I do? It's all inside of you. Don't look at people outside. Don't compare yourself. You are very special and unique and different. You are you, and no one else can take your place. So find yourself and be yourself. Thank you so much, Ms. Rafia, for your time and for your precious thought and insightful talk. And in the last, I would like to just conclude the today's launching podcast that youth leadership program actually represent an incredible opportunity to the youth individual and develop the leadership skills in them and make a positive impact in the for the community. So thank you so much for listening and thank you so much, Ms. Rafia, for your time. And looking forward to see you in further upcoming projects and the programs as well. Thank you so much for your support. Thank you so much, Lubna, for your time and for having a detailed discussion. I think इसमें हमने बहुत सारे सवालात के जवाबात दे दिए हैं जो कि फिर वो एक मैसेजेस में छोटे छोटे आते रहते हैं तो वो बहुत सारी चीजें इसमें एड्रेस हो गई हैं. So Definitely. Thank you so much. Thank you so much. And inshallah, looking forward to see you all for the support and join the community of YLP Vision 2030 for your children, for yourself, and for upcoming leaders with the new thoughts and the insightful knowledge as well. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.